Hello students, how are you? I hope all you are good. So today we are going to discuss the application part of the differential equation. So application it is also known as a application to the engineering problem, or you can say application of the differential equation. So how we implement the our differential equations in the problems like Newton's law of cooling you studied in your 12th standard in physics, law of natural decay and growth you studied in the your chemistry, radioactive disintegration, simple circuit we will discuss simple electric circuit or simple circuit, and simple harmonic motion. So we will discuss these four topic one by one. So today we will discuss the Newton's law of cooling and simple electric circuit. So come on the topic. What is the Newton's law of cooling? I think you all studied this Newton's law of cooling in your 12th standard. According to the Newton's law of cooling, the rate of just both are the same. This is the same definition. The rate at which the substance cool in moving is proportional to the difference between the temperature of the substance and that of the air. Indirectly, what they are trying to say, just see here. For example, according to Newton's law, if you are taking d upon dt, where dt is the t is the temperature and small t is the time. So it's directly proportional to the temperature difference delta T, okay, and that is minus, okay, because the temperature is decreasing. So this is written like dt upon dt equals minus k delta T, and dt upon small dt is equal to minus k, you can write it t minus t a. So or you can also write dt upon dt equals to minus k t a s t a s. Now let's discuss each and every point. So where T is the temperature of the body at any time, Ts is the temperature of surrounding, and if you are considering is temperature of the air, then it is represented by Ta. So accordingly, you can write it. K is the positive constant of proportionality. That is, we can write like that one. And negative sign indicates that body temperature decrease when the temperature is, because as per the first law of thermodynamics, the temperature flows take place from the higher temperature body to the low temperature body. So first we will discuss the derivation of this one, how we will implement this formula in our daily life. So consider it as equation number one. I will begin each and everything by this formula. Okay. So so this is the question, and we will implement the formula and we will solve this question. Question number one, a body originally at 80 degree centigrade cools down to 60 degree centigrade in 20 minutes. The temperature of air being 80 degree centigrade, 40 degree centigrade, what will be the temperature of the body after 40 minutes from the original? So while you are going to solve these questions, first you need to write your Newton's law of cooling. So solution, and in each and every question you have to follow the same process. Since we know that what we know that we know that
d upon dt equals minus k in bracket t minus ta. You can also consider it as ts. Okay, now separation of variable method. So dt upon t minus ta equals to minus k dt. Separation of variable method. And what is this? This is Newton's law of cooling. Okay, so this implies that integrating both sides, integrating both the sides, दोनों sides को हम integrate करेंगे, then what we will get? This implies that integration of dt upon t minus ta is equal to integration minus k dt plus c1. So this implies that log, ये सारे नेचुरल लॉग से ये ध्यान रखना, दैट मीन्स लॉग बेस ई, एल एन बी से बोलते हैं, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी वन. नाउ रिमूव द लॉग. So t minus a is equal to e to the power minus kt plus c1. राइट हैंड साइड को सेपरेट कर देते हैं, तो t माइनस टी ए इक्वल्स e की पावर माइनस के टी इंटू e की पावर c1. So what we will do? We will assume let e की power c1 is equal to new constant c. You can put one constant by another you can replace one constant by another constant. This implies that t minus a is equal to c e की power minus k t. This is your one formula. Okay, so while you are solving any problem, you have to use this formula, and where c is the integrating constant, so this equation 1 can also be written as equation 1 can also written as t is equal to ta plus c e की power minus kt. And now we can find the value of c. How? When t is equal to 0, initial value है t is equal to 0, what we will take? Temperature T is equal to T naught. This implies that T naught is equal to TA plus C into e की power k into 0. So this implies that T naught minus TA equal to C. ये C की वैल्यू आ गई, इसको उठा के पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में. पुटिंग C इज इक्वल टू, चेक कर लो क्या वैल्यू थी, T नॉट माइनस टी ए इन इक्वेशन 1. वी गेट, क्या मिलेगा, चेक इट. दिस implies that T is equal to TA plus
टी नॉट माइनस टी ए इंटू ई की पावर माइनस के टी। दिस इज योर फाइनल रिलेशन। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस प्रॉब्लम को यहाँ तक कि आपको हर एक क्वेश्चन में करना ही करना है। यू हैव टू फॉलो ऑल दिस स्टेप इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, अदरवाइज you will not get the complete marks। ओके, तो ये याद रखना, क्योंकि ये आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इट इज नेसेसरी दैट यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप। तो अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम आते हैं नॉर्मल फिजिक्स के फॉर्म पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, द ओरिजिनल टेम्परेचर इज 80 डिग्री, कूल्ड डाउन 60 डिग्री, दैट मीन्स 20 मिनट्स पे कंडीशन 1 के हिसाब से, तो व्हाट आर द गिवन वैल्यूज हियर, एंड द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 40 डिग्री। सो लेट्स राइट ऑल द डेटा, just a minute। according to क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, टी नॉट इज इक्वल टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉमा टी ए इज इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड टी इज इक्वल टू 60 डिग्री व्हेन एट, पहला टाइम देख लो, एट t is equal to 20 minutes। तो हमें क्या निकालना है, when, चेक कर लो, when t is equal to 40, when t is equal to 40 degree, you have to find capital T। okay, capital T। so let's give equation number 2, putting the given values in equation 2, पुट करते हैं 2 में। तो क्या आएगा, पहली कंडीशन क्या है देख लो, T कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दिस इज योर 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टी ए कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस टी नॉट कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, टी ए कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ई की पावर माइनस के रिमेंस के, और टी की वैल्यू कितनी है 20। इसको अरेंज कर लेते हैं, तो 60 माइनस 40 यू गेट 20 इज इक्वल टू 40 ई की पावर माइनस 20 के। दिस इम्प्लाइज दैट 0 से 0 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 2 से ये कैंसिल हुआ, तो बचेगा 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 20 के। हमने ये वैल्यू निकाल ली। नाउ अप्लाइंग द सेकेंड कंडीशन, इधर कर लेते हैं, अप्लाई कंडीशन 2। सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है, हमें टी कैलकुलेट करना है, टी ए की वैल्यू 40 डिग्री है, प्लस टी नॉट 80 डिग्री है, माइनस टी ए फिर 40 डिग्री है, ई की पावर माइनस के, और इस बार आपको 40 मिनट्स पे टेम्परेचर निकालना है। तो T इज इक्वल टू 40 प्लस 40 इंटू ई की पावर माइनस 40 के। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो T इज इक्वल टू 40 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 40 के। इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे, तो T इज इक्वल टू 40 ब्रैकेट में 1 प्लस ई की पावर माइनस 20 के का होल स्क्वायर। आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको सेपरेटली के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट T इज इक्वल टू 40 इन ब्रैकेट यू हैव अ 1 प्लस, अब इसकी वैल्यू आपको नोन है कितनी, ये देखो, जस्ट चेक दिस वैल्यू 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो T इज इक्वल टू 40 प्लस 1/1 प्लस
4, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 40 इंटू 5/4, 4 से 40 डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल दिस, यू गेट 10, तो बचेगा 10 इंटू 5, दिस implies that T is equal to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 40 मिनट बाद जो बॉडी 80 डिग्री पे थी उसका टेम्परेचर रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट आंसर। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू मोर प्रॉब्लम्स ऑन दैट वन। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। इस प्रॉब्लम नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस आएंगे, तो इस कैलकुलेशंस के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना, आपको कैलकुलेटर को यूज़ करना है, और कैलकुलेटर में याद रखिएगा कि मैक्सिमम कैलकुलेशन हम लोग नेचुरल लॉग पे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए solution याद रखना, always remember one thing, you have to follow the complete process which we did in our previous question. That means you have to start according to, in this question I will not solve the complete according to Newton's law of cooling। क्या था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, dt इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी ए, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 we get what we will get, t is equal to ta plus t naught minus ta into e to the power minus kt. So you have to solve this thing in each and every question because this is a very important thing. So we will begin with this equation number 2. So read the question. This is a little bit different. If the temperature of the air is 30 degrees centigrade, that means according to question, according to question क्या दिया हुआ है, TA is equal to 30 degree centigrade. Second thing, and the substance cool from 100 to 70 degree. That means initial temperature T naught कितना है, 100 degree centigrade to the 70 degree centigrade in 15 minutes. That means condition 1. Condition 1 क्या कह रहा है, after 15 minutes, yeah, in 15 minutes, whatever you can write, 15 minutes temperature will become, that means T is equal to 70 degree. अब कह रहा है कंडीशन 2, दिस इज कंडीशन 1, कंडीशन 2 क्या कह रहा है, कंडीशन 2 कह रहा है at what time the temperature T will 40 degree centigrade. So what the question is asking? Question is asking to find T. You have to find T in this question. So let's put the value and then you will get your answer. So how will we put our values? See, putting all values, putting the condition, ये कंडीशन हम नहीं बना रहे, द कंडीशन इज गिवन द क्वेश्चन, कंडीशन 1 and condition 2 in the equation 2 में पुट करते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम पुट करेंगे तो फर्स्ट टाइम क्या कह रहा है हमारे पास, टी ए, तो फर्स्ट टाइम कितना है 70 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टी ए कितना है 30
प्लस टी नॉट 100 माइनस टी ए 30 इंटू ई की पावर माइनस के, टी कितना है 15 है, तो 15 इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो हो जाएगा 70 माइनस 30 40, 40 और उधर बचेगा 70। तो दिस इम्प्लाइज दैट यू हैव अ 40 इज इक्वल टू 100 माइनस 30 हो जाएगा 70 इंटू ई की पावर माइनस 15 के। तो दिस इम्प्लाइज दैट 4/7, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4/7 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 15 के। यहाँ से लॉग ले लो, नेचुरल लॉग लेंगे चाहे तो ln लिख लेना, नेचुरल लॉग लॉग ई 4/7 इज इक्वल टू माइनस 15 के आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो k इज इक्वल टू -1/15 लॉग 4/7, ये हमारे पास k निकल आया। अब कंडीशन 2 अप्लाई करेंगे, तो कंडीशन 2 अप्लाई करेंगे तो कंडीशन 2 चेक कर लेते हैं। कह रहा है टी का टाइम चाहिए, टाइम पूछ रहा है और टेम्परेचर कितना हो जाए 40 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो रखते हैं, तो टी कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कंडीशन 2 है ये, इज इक्वल टू क्या है टी ए है, टी ए कितना है 30 है, तो 30 डिग्री अगेन प्लस टी नॉट 100 माइनस टी ए 30 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू ई की पावर माइनस के, और टी ही निकालना है इस केस में। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 40 माइनस 10, दिस गिव्स यू अ 10 डिग्री सेंटीग्रेड और दिस इज योर 70 डिग्री सेंटीग्रेड। आई एम नॉट राइटिंग दिस एंड दिस विल सब्ट्रैक्टेड, ई टू पावर माइनस के टी। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/7 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। यहाँ से लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे, इंटेंसली लॉग बेस ई लिखना ही पड़ेगा, ई 1/7, कंफ्यूज मत होना, नेचुरल लॉग इसमें टी। तो दिस इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू -1/k, और ये हो जाएगा -1/k लॉग बेस ई 1/7। अब हमारे पास यहाँ से टी की वैल्यू मालूम हो गया, तो पुटिंग गिव इट इक्वेशन नंबर, चेक कर लो पीछे कितनी इक्वेशन दी है, 2 है ना, दिस इक्वेशन नंबर 3, दिस हैज इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ आई एम चेंजिंग द इंक, पुटिंग the value of a from equation 3 to equation 4, 3 से equation 4 में k की वैल्यू दो, तो t इज इक्वल टू, देखो -1 k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है -1/15 लॉग 4/7, बेस ई है अंडरस्टूड रखना, इनटू लॉग बेस ई 1/7, यहाँ पर बेस ई लिखते हैं, इसको अरेंज कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये t इज इक्वल टू 15 न्यूमरेटर में जाएगा, लॉग ई 1/7 अपॉन यू हैव अ लॉग बेस ई 4/7। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा डार्क पेन ले लेते हैं, दोनों की वैल्यू चेंज करेंगे, पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, कैलकुलेटर यूज कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा, इनटू दिस गिव्स यू अ -1.96, दिस गिव्स यू अ -0. इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये 100% एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, माइनस विल कैंसिल विद माइनस, दिस इम्प्लाइज दैट t is equal to 15 इंटू डेसिमल से डेसिमल रिप्लेस कर देते हैं, 15 इंटू 1596 अपॉन 56, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस गिव्स यू अ 2949
डिवाइडेड बाई 56 कैलकुलेट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट टी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आएगा 52.2 minutes. This is your final answer. So in this way you can solve the answer. So, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग थक गए हो, चलो कॉफी ऑफी पी लेते हैं, तो एक कॉफी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इज अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन एज टू द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट मीन क्वेश्चन नंबर 1. So we will solve this question and you can easily go through the question and able to solve. तो start करते हैं solution. वही पुरानी कहानी, the same story will repeat here. We will begin with the Newton according to Newton's law of cooling. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, डी अपॉन डी टी। दिस इम्प्लाइज दैट डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के क्यों लिखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर फ्लो होता है। और यहाँ पे क्या था टी माइनस टी नॉट, ये हमारा डेल्टा टी होता था। तो इक्वेशन 1 ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट, ये चीज़ मैं आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर वी गेट लिख देता हूँ, आप ऐसे एग्जाम में नहीं ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप। तो यू हैव अ टी इज इक्वल टू टी ए या टी एस सराउंडिंग जो भी आप लो, इन ब्रैकेट टी नॉट माइनस टी ए इंटू ई की पावर माइनस के टी। डेरिवेशन आप क्वेश्चन नंबर 1 से देख सकते हैं और मैंने ऊपर भी डिफाइन कर दिया है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन की डेफिनेशन पढ़ना शुरू करते हैं 1 by 1। तो क्या कह रहा है, अ कप ऑफ कॉफी हैज अ टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री इन द रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री। दैट्स मीन्स यहाँ पर क्या दिया हुआ, गिवन। आप अपने हिसाब से चीज लिखना, गिवन पहला इनिशियल जो उसकी वैल्यू थी टी इज इक्वल टू, जो कॉफी आप लेकर रूम में आए हो उस समय टेम्परेचर था, दैट्स मीन इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या कह रहा है, टी ए रूम टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री टेम्परेचर। तो टी ए इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड लिखो या ना लिखो, तो अब क्या है, कंडीशन 1, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट द टेम्परेचर ड्रॉप्स। तो कंडीशन 1 क्या है, T इज इक्वल टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड है एट स्मॉल t इज इक्वल टू 10 मिनट्स। 10 मिनट्स पे 20 में आ जाता है। कंडीशन 2 लिख लेते हैं। कंडीशन 2 क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कंडीशन 2 दिस इज गिवन कैपिटल T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कब, एट T इज इक्वल टू 20 मिनट्स। वेरी आइडेंटिकल क्वेश्चन एज टू द प्रीवियस वन। तो कंडीशंस में यहीं पर लगा लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, अननेसेसरी पेज रिपीट ना करना पड़े, टर्न ना करना पड़े। तो इंक चेंज कर लेते हैं, ग्रीन इंक ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब अप्लाई करोगे, अप्लाइंग द कंडीशंस, तो कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। तो जब कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास है, पहली कंडीशन क्या है, देखो इस वैल्यू को, इसकी वैल्यू है 70, तो 70 इज इक्वल टू टी ए कितना है 25, ये 25 है, तो 25 प्लस टी नॉट कितना है, टी नॉट है 90 डिग्री, तो टी नॉट 90 डिग्री रख देंगे हम, 90 डिग्री माइनस टी, दिस इज टी ए कितना है 25 डिग्री, और इनिशियल ई की पावर माइनस कितना टाइम था, के टी मतलब 10 के,
तो अब इसमें से हो जाएगा 70 माइनस 25, दैट मीन्स कितना आएगा 45 इक्वल टू 25, 90 से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 65, 65 e की पावर माइनस 10k। तो दिस implies that 45 upon 65 इक्वल टू e to the power माइनस 10k। तो डिवाइड कर लो तो दिस implies that 9 upon 13 इज इक्वल टू e की पावर माइनस 10k। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब रेड पेन यूज करेंगे कंडीशन 2 के लिए। कंडीशन 2 अप्लाई करते हैं। जब कंडीशन 2 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंडीशन 2 अप्लाई करेंगे तो अब फिर लोड करते हैं हम। तो कंडीशन 2 के लिए क्या है, हमें टी निकालना, तो टी स्टिल रिमेन्स टी। टी ए कितना है 25 है, प्लस टी 90 डिग्री है। देखो ये वैल्यू तो आप यहीं यहाँ से कॉपी कर लेना, इसको आपको सोचना नहीं बार बार। 90 माइनस 25 इंटू ई की पावर माइनस 20 मिनट है तो 20 इंटू के। अब देखो t इज इक्वल टू 25 प्लस ये आपको मालूम है माइनस करके कितना बचने वाला है 65 इंटू इसको ब्रेक कर दो e की पावर माइनस 10k का होल स्क्वायर। इंडाइसिस रूल लग जाएगा। अब इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 9/13 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा t इक्वल्स 25 प्लस 65 इंटू 9/13 का होल स्क्वायर। सी एक मिनट, हाँ देखो 25, ये 25 है, ये 65 है, इसकी वैल्यू 9/13 कहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 से उठाकर पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t इज इक्वल टू 25 प्लस 65 इंटू 9 अपॉन 13। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस गिव्स यू अ 5, 13 5 जा। नाउ यू हैव अ t इज इक्वल टू 25 प्लस 5 इंटू 81 अपॉन 13। इसको कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लो, जैसे भी कर लो दैट डजंट मैटर। 25 में से 5 कॉमन ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। तो 25 का 5 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 5 प्लस 81 अपॉन 13। तो दिस implies that t is equal to 5 इंटू इन ब्रैकेट एलसीएम लेंगे तो 5 इंटू 13 प्लस 81 अपॉन 13। तो दिस implies that t is equal to 5 इंटू 65 अपॉन 13, 65 प्लस 81। so this implies that t is equal to 5 upon 13। कैलकुलेशन अब मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। तो ये आएगा 6 and 8 and 6 14। और जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितना आने वाला है। तो व्हेन यू डू द कैलकुलेशन तो दिस इज 5 इंटू 146 गिव्स अस, this gives us t is equal to 730 upon 13। और when you divide it by 13 this gives you 56.15338। तो you can write it t is approximately equal to 56 degree centigrade। This is your final answer। So this is all about the न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग आज 2 टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट द
simple circuit. So let's start the simple circuit. So simple circuit, this is the one question of the simple circuit, and we will discuss lot of things in this question. So what is the question? An LR circuit has a EMF, electromotive force. You all know that, given in volts by 4 sin t, comma, a resistance of 100 ohm and inductance of 4 Henry, and no initial current, इनिशियली कोई करंट नहीं है. फाइंड द करंट एट टाइम. ओके, so I am just going to explain each and everything solution. देखो, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा और रब भी कर दूंगा. इलेक्ट्रिकल सर्किट में बेसिकली तीन चीजें हो सकती हैं. एक क्या हो सकता है, और शॉर्ट में एल, सी और आर. These are the basic elements of the electrical circuit: inductance, capacitor, as well as the resistance. ये हमारा जो सर्किट है इसमें दो एलिमेंट हैं, आर एंड एल. तो एक और ईएमएफ है. ईएमएफ को हम लोग कैपिटल ई से भी लिखते हैं, क्योंकि वोल्ट में इसको आप कैपिटल वी वोल्टेज भी लिख सकते हैं. तो हमारे पास जो क्वेश्चन है पहले उसको हम ड्रॉ करते हैं. क्या कह रहा है, वी हैव अ इलेक्ट्रिकल सर्किट. एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें एक हम लगा देते हैं रेजिस्टेंस ऐसे, और एक हम लगा देते हैं कॉइल, दैट इज कॉल्ड इंडक्टेंस. ये हमने सर्किट डायग्राम बना दिया. और यहाँ पर हमने क्या किया, आप करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ऐसे सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं. हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में. यहाँ पर कुछ आपने देखा होगा, ऐसे करके एक की लगी होती है, ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए. फिर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आप बैटरी लगा सकते हैं. कनेक्ट कर दिया बैटरी को इससे, और साथ में यहाँ पर क्या होता है, ऐसे इसको कनेक्ट एक एक की लगा देते हैं. Although all these things are not required here, this is your key, this is your junction point, connecting point, and this is your बैटरी. तो बैटरी का ईएमएफ कितना, ईएमएफ और वोल्टेज आर द सेम थिंग. ये रेजिस्टेंस है आर, ये इंडक्टेंस है एल. तो वोल्टेज ड्रॉप, कितना वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हुआ, दैट इज कॉल्ड वी आर. कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इंडक्टेंस, दैट इज कॉल्ड वी एल. अब सेपरेटली मैं आपको वी एल और वी आर की वैल्यू बताया जा रहा हूँ, जो आप लाइफ टाइम हमेशा याद रखना. वी आर इज इक्वल, मैंने इंटेंसिटी सर्किट के अंदर लिखा, आप मत लिखिएगा कभी. V इज इक्वल टू आई, आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अभी जरूरत नहीं. एंड वी एल इज इक्वल टू आपका होता है एल डी आई अपॉन डी टी. तो ये याद रखना, ये फॉर्मूले हैं, आप फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे. तो टोटल वोल्टेज जो हमारा होगा V इज इक्वल, E इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल. अब हम लिखते हैं, हमारे पास V की वैल्यू कितनी है, 4 साइन टी. हमें इसको कन्वर्ट करना है एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, फिर अप्लाई करना. वी आर की वैल्यू कितनी है, आई आर, प्लस वी एल की वैल्यू कितनी, एल डी आई अपॉन डी टी. अब इसको हम अच्छे से अरेंज कर लेते तो ये आएगा एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आई आर इक्वल टू 4 साइन टी. ये हमारे पास आ गया. अब डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कुछ लीनियर इक्वेशन जैसा दिख रहा है, आप देखो अच्छे से. तो अगर लीनियर इक्वेशन जैसा दिख रहा है तो डी आई अपॉन डी टी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए. तो क्या लिखेंगे हम लोग, डी आई अपॉन डी टी प्लस आर अपॉन एल, पूरी इक्वेशन को एल से डिवाइड कर दिया, इंटू आई इज इक्वल टू 4 अपॉन आर साइन टी. ये हमारे पास इक्वेशन बन गई. गिव इट इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 इज द लीनियर इक्वेशन. हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई. अब जब लीनियर इक्वेशन बन गई तो सबसे पहले हमें निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए मैं आपको एक चीज़ बताते चल रहा हूँ. ये आई और, आप देख लो, ये आई और
टी के फॉर्म में लीनियर है, तो ये हमारा हो गया पी, ये हमारा हो गया पी, और ये हो गया पूरा हमारा कैपिटल क्यू। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे। तो आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन आर अपॉन एल इंटू टी। तो सॉरी डी टी बेटा, नॉट टी, डी टी, that is dt, that is dt. So this is equal to e to the power r upon l dt. Sorry, that is t. After integrating you get t only, so that is t. So now your integrating factor is equal to e to the power r upon l into t. Integrating factor हमें मिल गया. After finding the integrating factor, we have to write the complete solution. So complete solution क्या होगा? Complete solution is I into integrating factor equals to integration of 4 upon r sin t e की पावर r by l t dt प्लस कांस्टेंट c। अब इसको और अरेंज करके हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू इधर तो रख दिए, इधर रख दो, तो i इंटू ई की पावर r अपॉन l इंटू टी इज इक्वल टू 4 अपॉन r, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट 4 अपॉन r, no, that is a mistake, extremely sorry, just correct, this is l not r, when you're dividing by l na, so this is l, so this is your l, this is your l, and this is also your l, so l l, so what you will get, you will get integration of e to the power r upon l t sin t dt प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपको याद होना चाहिए, मैं आपके कन्वीनियंस के लिए वो फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। एक फॉर्मूला होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax साइन bx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट a साइन bx माइनस b कॉस bx। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रखना, वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला हियर। r by l is your a and the value of b is 1 because the coefficient of t is 1 only. So we are going to use the formula. So that gives you, this implies that I into e to the power r by l into t is equal to e to the power r by l into t upon r square upon l square plus 1 ब्रैकेट में a का मतलब हुआ r बाई एल साइन टी माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, मैंने बताया था, b की वैल्यू है 1 इंटू कॉस टी, ब्रैकेट क्लोज कर लो, और प्लस कांस्टेंट c था या c1 था देख लेना, आई थिंक c लिया था, कांस्टेंट c लिया था, कांस्टेंट c ही रहेगा। अब इसको पूरी इक्वेशन को e की पावर r से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इन ब्रैकेट यू हैव r अपॉन एल साइन टी माइनस कॉस
टी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस आर बाई एल टी। तो अब देखते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो आप चाहे तो एल स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक बार आप चेक कर लो इसको, सही है, कुछ गलत तो नहीं किया है। 4/L, ये वाला 4/L छूट गया तो इसको लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर एक था 4/L, तो ये हो जाएगा 4/L। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं, तो ये L से ये L कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचा उसको लिखते हैं, यू हैव 4/r² प्लस L²। इस L को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो L से L कैंसिल हो जाएगा, ये जो बचा हुआ L है अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बचेगा r साइन t माइनस L कॉस t प्लस c e की पावर माइनस r बाई एल टी। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या कहता है, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे कोई करंट फ्लो नहीं रहता, मतलब i इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर लिख लो एट t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे करंट i इज इक्वल टू 0 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये कर रहे हैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्वेश्चन लेंथी होते ही हैं, तो 0 इज इक्वल टू 4/r² प्लस L²। देखो r इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, माइनस L इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस c e की पावर 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट आपका आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4L/r² प्लस L² माइनस का आएगा प्लस सी। क्वेश्चन में देख लो कोई कंडीशन और तो नहीं थी, नो कंडीशन देयर, जस्ट अ मिनट। तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई c इज इक्वल टू 4L/r² प्लस L²। ये हमारी c की वैल्यू निकल आई। अब ये c की वैल्यू उठा करके हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं c की वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, i इक्वल्स i की वैल्यू कितनी है, i इक्वल्स 4/r² i इक्वल्स 4/r² प्लस L² इन ब्रैकेट r साइन t माइनस L कॉस t। c की वैल्यू आई है 4, चेक कर लो, 4L/r² प्लस L² e की पावर माइनस r/L इंटू टी। तो दिस इम्प्लाइज दैट i इक्वल्स 4/r² प्लस L² कॉमन है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा यूज करेंगे, कितना बचेगा, r साइन t माइनस L कॉस t प्लस L e की पावर 4 बाहर जाए इसका L e की पावर माइनस R L t, ये आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, सी दिस, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम, इंडक्टेंस की वैल्यू है 4 हेनरी, और तो कुछ दिया नहीं है और कुछ नहीं दिया हुआ, वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा,
गिवन, लिख लो यहाँ पर, गिवन R इज इक्वल टू 100 ओम एंड L is equal to 4 Henry, 4 Henry, okay. So I is equal to 4 upon 100 square plus 4 square in bracket 100 sin t minus 4 cos t plus 4 e की पावर माइनस 100 अपॉन 4 t, सारी वैल्यू पुट कर दी। तो दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू, अब इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है हमें। देखो बेटा, मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ, 4 ऊपर है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन निकाल लिया। हमने इसको लिखा 25 इंटू 4 का होल स्क्वायर प्लस 16, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है 25 साइन टी माइनस कॉस टी प्लस ई की पावर माइनस 25t, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा, आपका ये बचा। दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू 16, देखो 4 का स्क्वायर 16 और ये 16 कॉमन लो, 16 अपॉन 16 ब्रैकेट में बजाय 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 16 कॉमन लिया था 1 बचेगा, ब्रैकेट में आएगा 25 साइन टी प्लस माइनस कॉस टी प्लस ई की पावर माइनस 25t, ब्रैकेट क्लोज। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1 अपॉन 626 25 साइन टी माइनस कॉस टी प्लस ई की पावर माइनस 25t, और यही आपका फाइनल आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके आंसर। तो ऐसे करके हम इस टाइप के सिंपल सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑलरेडी लेक्चर लेंथी हो रहा है, बट हम इसको एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर बाइंड कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सिंपल सर्किट क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, बट यहाँ पर क्या है, देखो वहाँ पर दिया था 4, यहाँ पर दिया हुआ ई नॉट, 4 की जगह ई नॉट और ओमेगा की जगह पर ये दिया हुआ है, 1 की जगह ओमेगा दिया हुआ, तो ये और साथ में यहाँ पे कंडीशंस चेंज हो गई, और एक क्या लिख रहा है, प्रोवाइडेड दैट टी इंक्रीजेस इनफाइनाइटली, ठीक है। तो इनफाइनाइटली अगर टी इंक्रीज कर रहा है, करने दो, उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, कंडीशन वही आएगा, ठीक है। तो कि एक इनफाइनाइटली टी पे ऑटोमेटिकली करंट 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 देके हम इसको स्टार्ट करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो सोल्यूशन, LCR सर्किट है, बाकी पार्ट आप ऊपर से एज इट इज उठा लेना ऊपर वाले क्वेश्चन का। बस मैं एक चीज़ आपको दिखाया दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो हमारी ये इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, इसको मैं डायरेक्ट, इसको क्या बोलती है, इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखी थी, इक्वेशन नंबर 1 को मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो फ्रॉम LR सर्किट, LR सर्किट से क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा DI अपॉन DT प्लस R अपॉन L इंटू I इज इक्वल टू 4 था ना पर, यहाँ पर E नॉट और L से डिवाइड कर, E नॉट L साइन ओमेगा टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से करेंगे, ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। अब हम निकालेंगे इसमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर
इंटीग्रेशन ऑफ आर अपॉन एल इंटू डी टी। हम सबको मालूम है ये कितना आएगा, ई की पावर आर अपॉन एल, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एफ इज इक्वल टू ई की पावर आर बाई एल। इसमें ये प्रूफ करने के लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी प्रोसेस प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना, जो भी मैं डिस्कस करूंगा वही पूरा क्वेश्चन का जान है। तो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, आई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंट क्यू, क्यू का मतलब राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कितना है, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बाद में रख लेंगे वैल्यू, डी टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। आते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट आई इंटू ई की पावर आर बाई एल टी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल, कॉन्स्टेंट है बाहर निकाला, इसका इंटीग्रेशन हमारा होगा ई की पावर आर अपॉन एल इंटू टी साइन ओमेगा टी डी टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। चेक कर लो एक बार, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करी, कुछ छूटा तो नहीं है। ई अपॉन ई नॉट अपॉन एल बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ई, ठीक है बेटा, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। तो दिस इम्प्लाइज दैट आई इंटू ई की पावर आर अपॉन एल टी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल। यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, वो मैं भी आपको बाद में नीचे बताऊंगा। तो फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट ई की पावर आर अपॉन एल टी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट यहाँ पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन आर बाई एल। ये ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये लर्न कर लेना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं दोनों फॉर्मूले आपके लिए एक साथ लिखूंगा, याद रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है ई टू द पावर ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर होता है साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो अब ये मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया बेटा आपके लिए, दोनों फॉर्मूले, बट यहाँ पर आपको कंपेयर करना पड़ेगा और केयरफुली आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास ए कितना है, यू हैव, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्रीन पेन से ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यू हैव, अगर ये आप देखो तो दिस इज योर ए। तो ए इज इक्वल टू आर बाई एल एंड बी कितना है, बी इज इक्वल टू ओमेगा। आप देख लो जब आपने लिखा, याद रखना इस फॉर्मूले में अंडर रूट आता, तो देखो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन बी टी मतलब साइन ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स ये। तो हमने ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया। अब आते हैं, तो हमें देखो क्या प्रूफ करना है, ऊपर देखो ओमेगा टी और ये प्रूफ करना। तो देखो जैसे आप एल बाई आर को रेसिप्रोकेट करो, देखो आ जाएगा भी। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आया, आई इंटू ई टू पावर आर अपॉन एल इंटू टी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल। इसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं तो ई टू पावर आर अपॉन एल टी अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और जो ये डिनोमिनेटर वाला एल स्क्वायर था ये ऊपर जाएगा तो इनटू में आ जाएगा साइन, और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लिखना भूल गए तो लिख लेना, साइन ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस कांस्टेंट सी। वही पुरानी चीज, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे ई बाई आर से। तो आई इज इक्वल टू, देखो इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो इस ई पावर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी, ऊपर मैंने C1 लिख दिया, करेक्ट कर देते हैं, प्लस सी। ओके, इतना रखने के बाद अब देख लो ऊपर अगर आप आ जाओ तो आपका आंसर तो आ चुका है, बस एक चीज़ मिसिंग है, जो आपका कांस्टेंट सी है, इनके कांस्टेंट सी की वैल्यू ज़ीरो आ रही है। तो अगर सी की वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सोचो और सी की वैल्यू निकालो। तो जब सी की वैल्यू, जस्ट लेट मी चेक, यहाँ पर आएगा इंटू ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो देखो क्या होगा, क्योंकि ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो ये लाइन, टी इंक्रीजेज इनफाइनाइटली, अगर टी इंक्रीजेज इनफाइनाइटली है तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आपका काम खत्म। अगर टी इंक्रीजेज इनफाइनाइटली तो ई टू पावर माइनस आर एल इंटू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, इफ दिस गिव्स यू ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये टर्म ज़ीरो हो गया तो क्या, मैंने आपको समझा दिया है क्या, टी टेंस टू इन्फिनिटी, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है, तो ई टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू इन्फिनिटी थोड़ा बड़ा सा लिख दो, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये होता है ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर जो आपको प्रूव करना था वो आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, स्मॉल ब्रैकेट बंद, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और दिस इज योर फाइनल आंसर, hence proved. So this is all about the solution of simple circuits and न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो आज हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, अगली बार नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डिके रेट एज वेल एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।